Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes. So, as you all know, that from today we are starting our syllabus of internal assignment P1. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you lesson 13, and the topic of the lesson is adverbs. So, before that, you all must be thinking that today ma'am is explaining with the pages of books. So now, yes, the explanation of all the subjects will be through the books only. So before starting the video, what you all have to do, you all have to take your book with you, a pencil with you. So wherever you are finding any difficulty, you can write in your books only. Okay, so let's get started. You have learned that adverbs are words that modify a verb, an adjective or another adverb. आपने पहले से पढ़ा है दैट एडवर्ब्स जो होते हैं दे आर वर्ड्स विच मॉडिफाई अ वर्ब, वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, और अनदर एडवर्ब्स जो ऑलरेडी एडवर्ब्स हैं उनको भी मॉडिफाई करते हैं, उनकी भी क्वालिटी बताते हैं. सो एडवर्ब्स आर कॉल्ड क्रिया विशेषण इन हिंदी, मीन्स दे टेल द क्वालिटी ऑफ वर्ब, दे टेल द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव एंड दे टेल द क्वालिटी ऑफ अनदर एडवर्ब्स ऑल्सो. दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स. Now let's see kinds of adverbs. So adverbs can be of different types depending on the function they perform in a sentence. Adverbs अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंड करता है on the function they perform in a sentence. किस प्रकार का function वो एक sentence में perform कर रहे हैं. So here we will discuss about kinds of adverbs. The first kind of adverb is adverbs of manner. Adverbs of manner in Hindi we say रीतिवाचक क्रिया विशेषण. So adverbs of manner indicate how an action is performed. ये बताता है कि जो action है वो किस तरह perform किया गया है या किया जाएगा. So रीति बताता है action की. Words such as happily, bravely, fastly, quickly, gladly and sorrowfully are some common adverbs of manner. These words are called adverbs of manner. In the grammar bites you can see in your book, adverbs of manner are often formed by adding ly to adjectives. जो adverbs of manner होते हैं उनको अक्सर हम फॉर्म करते हैं adjective में ly add करने के बाद. Like example you can see marry. Marry means होता है खुश. If we will add ly it will become merrily. Merrily means खुशी से. Honest. Honest is an adjective. It means ईमानदार. Honestly ईमानदारी से. So these are adverbs of manner which are formed from adjective. Now see the examples of adverbs of manner. The first example is the crowd cheered heartily for their favorite performer. जो crowd थी, भीड़ थी, cheered means होता है प्रोत्साहन बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, heartily पूरे दिल से अपने favorite performer का उत्साह बढ़ाया. Second is the baby smiled happily in her mother's lap. Lap means होता है गोद में. जो baby था वो खुशी से smile कर रहा था अपनी माँ की गोद में. Okay, so this is adverbs of manner which tells that how an action is performed. किस तरह एक action perform किया जाता है. Now it is second kind of adverb, that is adverb of time. Adverb of time indicates when the action is performed. टाइम मीन्स बताता है कि व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कब एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है. ओके, सो वर्ड्स सच एज सिंस, लेटर, एगो, बिफोर, टुडे, स्टिल, येट एंड सून आर सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ टाइम. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम. लाइक लेटर मीन्स बाद में, एगो पहले, बिफोर पहले, टुडे आज, स्टिल अभी भी, येट अभी तक, सून जल्द ही. सो दे आर टेलिंग अबाउट द टाइम ओनली and they are the examples of adverbs of time. Adverbs of time tells us that when the action is performed. Let's see the example. The first example is the fabled house of the rich. Houses of the rich have disappeared since their ruins remain. The ruins remain. सो फेबल्ड मीन्स होता है पौराणिक, मीन्स जो कथाओं में आए हो. सो जो मन घड़त भी कह सकते हैं, जो हमने केवल कथाओं में सुना होता है. सो जो कथाओं में पौराणिक घर सुने गए थे रिच लोगों के, वो अब डिसअपियर्ड हो चुके हैं सिंस, और तब से अब तक केवल उनके रियून्स, रियून्स मीन्स होता है खंडर, खंडर ही बचे हैं. Okay, second sentence is I knew about his real identity long before it was discovered by the detective. मैं उसकी असली पहचान जानता था डिटेक्टिव्स जो हैं उनके द्वारा खोज करने से पहले ही. Here it is written before. Before means long before. उनसे बहुत पहले मैं उसकी सही आइडेंटिटी जो है वो जानता था. सो हेयर दे आर टेलिंग अबाउट द टाइम, यानी पहले से जानता था और अब केवल रिमेन्स जो हैं वो रह गए हैं, रियून्स, खंडहर ही रिमेन बचे हैं. सो दे आर टेलिंग अबाउट द टाइम दैट व्हेन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, दैट इज
एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड. प्लेस से ही क्लियर हो रहा है दैट इट इंडिकेट वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कहाँ पर एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है. Words such as here, there, away, near, everywhere and nowhere are some common adverbs of place. They are the examples of adverbs of place. Here यहाँ, there वहाँ, away दूर, near पास में, everywhere हर जगह, nowhere कहीं पर भी नहीं. So they are the example of adverbs of place because they all are telling about the place only. Let's see the example of adverbs of place. The first example is the rats followed the Pied Piper everywhere. सो जो भी चूहे थे दे फॉलोड, उन्होंने पीछा किया पाइड पाइपर. पाइड पाइपर मीन्स मुरली बजाने वाला या बांसुरी बजाने वाला जो था, हर जगह पर उसका पीछा कर रहे थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. सेकेंड, एवरीवेयर मीन्स हर जगह पर. हेयर इट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस. सेकेंड एग्जाम्पल इज आई कुड नॉट फाइंड द बंच ऑफ कीज एनीवेयर. जो चाबी का गुच्छा था वो मुझे कहीं पर नहीं मिला. एनीवेयर मीन्स कहीं पर भी नहीं. सो दे बोथ एवरीवेयर एंड एनीवेयर दे आर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड दे आर टेलिंग वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड, कहाँ पर एक एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है, किया गया है और किया जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब. The next type of adverb is adverbs of reason. It is a new topic because I have not explained you in a previous class. In the previous class, the adverbs of reason. As the name is able to clear you that it indicates why an action was performed. ये indicate करता है कि एक action क्यों perform किया गया है. So words such as therefore, hence, consequently, thus, and on account of are some example common adverbs of reason. They are the examples of adverbs of reason. Okay, so by the example you will able to understand mobile phones have become more affordable, consequently more people buy them these days. So mobile phones जो हैं they have become more affordable means खरीदने के हमारे सामर्थ्य में आ चुके हैं कि हम खरीद सकते हैं. कॉन्सिक्वेंटली इसके फलस्वरूप मोर पीपल बाय देम दीज डेज, आजकल इसी के फलस्वरूप आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल फोन्स खरीदते हैं. सेकेंड इज ही इज एल एंड इज देयरफॉर अनेबल टू कम टू स्कूल. वो बीमार है और इसीलिए वह स्कूल आने में असमर्थ है. सो हेयर दे बोथ आर टेलिंग द रीजन. दैट फर्स्ट रीज़न इज़ कि मोबाइल फ़ोन अब जो है वो अफोर्डेबल हो गए हैं और इसी के फलस्वरूप लोगों ने इसे खरीदना इस्तेमाल कर लिया है. फर्स्ट इज़ ही इज़ इल, वो बीमार है और इसीलिए वो स्कूल आने में असमर्थ है. सो हेयर एडवर्ब ऑफ रीज़न इज़ कॉन्सिक्वेंटली एंड देयरफॉर. दे आर टेलिंग द रीज़न दैट वाई द एक्शन इज़ performed and why the action was performed. Next type of adverb is adverb of frequency. Frequency means होता है बारंबारता, means how often your action is performed. It tells कि आपका एक्शन जो है वो हाउ ऑफन, कितनी बार परफॉर्म किया जाता है, कितनी बार परफॉर्म किया गया है और कितनी बार परफॉर्म किया जाएगा. सो वर्ड्स सच एज ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, रेयरली, यूजुअली, डेली, once and occasionally are some common adverbs of frequency. They are the examples of adverbs of frequency like always, हमेशा, sometimes, कभी कभी, never, कभी नहीं, rarely, कमी से, usually, अक्सर, daily, रोज़ाना, once, एक बार, occasionally, अवसर के अनुसार. So they all are the example of frequency, means they are telling that how frequent the action is performed. So the first example is we often हॉलीडे इन द माउंटेन्स. हम अक्सर जो है वो छुट्टियां कहाँ मनाते हैं, माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर मनाते हैं. ऑफन मीन्स अक्सर, कई बार. माई फादर रियरली ड्रिंक्स कॉफ़ी, मेरे फादर जो हैं वो बहुत कमी से कॉफ़ी पीते हैं. सो दे ऑफन एंड रियरली दे आर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड दे आर टेलिंग दैट हाउ फ्रिक्वेंट द एक्शन इज परफॉर्म्ड. ओके, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री मीन्स होता है मात्रा. So here adverb of degree tells the intensity and degree of a verb, कि कितनी गंभीरता के साथ एक वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है. मीन्स गंभीरता क्या है, एडजेक्टिव की क्वालिटी और एडवर्ब की क्वालिटी भी हो सकती है. सो वर्ड सच एज वेरी मीन्स बहुत, ऑलमोस्ट लगभग, टू बहुत ज़्यादा, इनफ पर्याप्त, इंटायरली पूरी तरह, रियली सच में, ओनली केवल, क्वाइट अच्छे से, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक. दे आर the example of adverbs of degree. So first example is the runner had nearly completed the marathon when he tripped and fell. जो रनर था वो नियरली मीन्स बिल्कुल कंप्लीट कर चुका था अपना मैराथन जब वो ट्रिप्ड हुआ और वो गिर गया.
ही वॉज टू बिजी टू नोटिस द लिटिल डिटेल्स, वो बहुत ज़्यादा बिजी था कि वो छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस नहीं कर पाया. सो हेयर टू एंड नियरली दे आर टेलिंग द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन. सो जो रनर है वो नियरली कंप्लीट कर चुका था, अपनी पूरी तरह मीन्स लगभग कंप्लीट कर चुका था अपनी जो मैराथन है, और वो इतना ज़्यादा बिजी है कि वो छोटी सी भी डिटेल्स को नोटिस नहीं कर पाया. सो इट इज़ एडवर्ब ऑफ डिग्री. Next is interrogative adverbs. Interrogative adverbs are used to ask questions. They ask question. ये questions पूछते हैं. Words such as when, where, why, how and how often are used as interrogative adverbs. इनका इस्तेमाल किया जाता है interrogative adverbs की तरह. So here in grammar bite some information is given related to interrogative adverbs. Let's see. The words when, where and why are used as interrogative adverbs when they are used to ask a question. जब इनका इस्तेमाल एक question पूछने के लिए किया जाता है तब ये interrogative adverbs होते हैं. They are used as relative adverbs also when they are used to introduce a dependent clause. So yes, here is a confusion when I will explain you relative adverbs. The same words will be used as relative adverbs also. But if they are used to ask a question, if the words like why, where and how they are used to ask questions, इनसे अगर हम question पूछने के लिए इनका use कर रहे हैं, so they are interrogative adverbs. But if we are introducing a dependent clause through these adverbs, so that time they are relative adverbs. Like आप first example देख सकते हैं, why are you not writing the answer? So तुम आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो? It is interrogative adverb because we are asking question. And next is tell me why you tore the book. बताओ कि तुमने बुक क्यों फाड़ी. So tell me is dependent clause. So यहाँ पर why जो है it is used as relative adverb. So let's see the example. So the first example is where did the pirate hide the treasure chest. Pirate means होता है समुद्री लुटेरे. Pirate उन्होंने जो खजाना था, खजाने का बॉक्स था, उसे कहाँ पर छिपाया. So where कहाँ. Second is when did your mother come home from work. कब तुम्हारी मम्मी काम से घर पर आई. When means कब. So they all are interrogative adverbs. Next is relative adverbs. So relative adverbs are used to introduce a dependent clause in a sentence. एक ऐसी clause को introduce करता है जो dependent होती है अपने meaning के लिए दूसरी clause के ऊपर. इसके साथ ही modify करता है उसी clause के verb को जो adverb से पहले दे रखी है. Words such as when, where, why are some of relative adverbs. They are relative adverbs. From the example you will understand it. The first one is we explained to the teacher why we could not finish the homework on time. हमने टीचर को एक्सप्लेन कर दिया कि हम अपना जो होमवर्क है उसे समय पर पूरा क्यों नहीं कर पाए. We explained to the teacher is dependent clause because meaning clear नहीं हो रहा है. Why we could not finish the homework on time. हमने क्या एक्सप्लेन किया कि हम अपना होमवर्क समय पर पूरा क्यों नहीं कर पाए. सेकेंड एग्जाम्पल इज I know the area where he lives. मैं जानता हूँ उस एरिया को जहाँ पर वह रहता है. थर्ड वन इज शी वॉन्डर्ड वाई नो वन हैड रिटर्न होम येट. वो आश्चर्यचकित थी कि कोई भी अभी तक घर क्यों नहीं आया है. सो हेयर वाई, वेयर, वाई, दे ऑल थ्री आर रिलेटिव एडवर्ब्स. लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is position of adverbs. So each type of adverb is placed differently in a sentence. हर प्रकार का जो adverb होता है उसकी जो position होती है that is different in a sentence. The first is written adverb of manner are placed after the verb. जो adverb of manner होती है वो हमेशा जो होती है वो verb के बाद place की जाती है. Like in the sentence you can see she practiced hard टू विन द कॉम्पिटिशन. उसने बहुत ज़्यादा कठिन प्रैक्टिस की थी कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए. सो प्रैक्टिस्ड इज द वर्ब और हार्ड उसके बाद आया है, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. On the second point it is written adverbs of time and place are placed after the object of the verb. adverb of place जो होती है time and place, इसको object के बाद place किया जाता है. like in the first sentence you can see I had been to this shop before. मैं इस शॉप पर पहले ही आ चुका हूँ. I had been, shop आपका object है और object के बाद आपका before आ रहा है. in the second sentence you can see there was dust everywhere inside the room. सो क्या था? डस्ट. डस्ट इज ऑब्जेक्ट एंड एवरीवेयर इज कमिंग आफ्टर डस्ट. सो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ओके. On third number you can see adverbs of frequency are placed before the main verb. adverb of frequency जो होता है ये main verb के पहले आता है after the verb be means जो आपकी auxiliary verb होती है उसके बाद आता है, और between the main and auxiliary verb means helping verb और main verb के बीच में भी आता है. means या तो आपका main verb के पहले आएगा, are placed before, yes main verb के पहले आएगा,
हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, और हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आए। इन द एग्जाम्पल यू कैन सी रेनू यूजुअली स्टडीज इन द मॉर्निंग। रेनू जो है वो अक्सर मॉर्निंग में स्टडी करती है। सो स्टडीज इज द मेन वर्ब एंड यूजुअली अक्सर आपका आ रहा है मेन वर्ब से पहले। ही इज ऑफन फाउंड एट द टाउन लाइब्रेरी, वो अक्सर कहाँ पाया जाता है, टाउन लाइब्रेरी में। सो हेयर इज इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड फाउंड इज मेन वर्ब, और ऑफन आ रहा है दोनों के बीच में। ऑन द फोर्थ नंबर यू कैन सी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होता है उसे मेन वर्ब से पहले रखा जाता है इफ द सेंटेंस हैज अ मेन वर्ब एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब। सो क्या होता है, अगर एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी है एंड हेल्पिंग वर्ब भी है, सो एडवर्ब ऑफ डिग्री आपका दोनों के बीच में आ जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, आई ऑलमोस्ट फेंटेड इन द हीट। गर्मी में मैं लगभग फेंट यानी बेहोश हो गया था। सो ऑलमोस्ट आपका फेंटेड से पहले आया, फेंटेड इज मेन वर्ब, दैट मीन्स बेहोश होना, ऑलमोस्ट लगभग। इन सेकेंड सेंटेंस यू कैन सी शी हैज़ कम्प्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, वो अब अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुकी है। सो हैज़ इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड रिकवर्ड इज मेन वर्ब, और कम्प्लीटली आपका आया बीच में। So here I have explained you the position of adverbs, that adverbs of manner are placed after the verb, हमेशा verb के बाद आता है। Adverb of time and place are placed after the object of the verb, adverb of time and place आपका object के बाद आता है। And then एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आता है, या फिर मेन वर्ब के पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। इन एडवर्ब ऑफ डिग्री द सेम थिंग इज देयर, कि या तो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आएगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आएगा। सो दीज आर द पोजिशंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is adverbs degrees of comparison. In adjective, you all have understood about degrees of comparison, that positive degree, comparative degree and superlative degree. The same comparison of degree is there in adverbs also. Similar to adjectives, adverbs too have 3 degrees of comparison. एडजेक्टिव की तरह ही एडवर्ब्स में भी 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कॉम्परेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। एग्जाम्पल यू कैन सी जूही डांसेस ग्रेसफुली, जूही जो है वो ग्रेसफुली डांस करती है, दैट इज पॉजिटिव डिग्री। प्रीति डांसेस मोर ग्रेसफुली देन जूही, प्रीति जो है वो जूही से भी ज़्यादा ग्रेसफुली डांस करती है, दैट इज कॉम्परेटिव डिग्री। एंड थर्ड, सुरभि डांसेस द मोस्ट ग्रेसफुली ऑफ देम ऑल, सुरभि उन सभी से ज़्यादा ग्रेसफुली डांस करती है, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। इन पॉजिटिव डिग्री वी टेल द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन in a positive way. In comparative degree we compare the quality of 2 people. In superlative degree we compare the quality of a person with more than 1 people, more than 1 person or 2 person. The comparative degree of the verb can be formed by adding er to the base form of the adverb. It can also be formed by adding more before the adverb. So जो आपकी कॉम्परेटिव डिग्री होती है उसको फॉर्म करने के लिए आपकी जो एडवर्ब होती है उसके आगे ई आर भी लगाया जा सकता है और एडवर्ब से पहले मोर भी लगाया जा सकता है। फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड तुहीन वर्क्स फास्ट बट हिज फ्रेंड शाहीन वर्क्स इवन फास्टर। तुहीन जो है वो जल्दी काम करता है लेकिन उसकी जो फ्रेंड है शाहीन वो उससे भी जल्दी काम करती है। सो हेयर फास्ट में हमने ई आर लगाकर फास्टर बनाया। ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी मानव पैक्ड हिज सूटकेस नीटली, मानव जो है वो अपना सूटकेस नीटली पैक करता है। एंड शेखर पैक्ड हिज सूटकेस मोर नीटली देन मानव, शेखर जो है वो मानव से भी ज़्यादा अपना सूटकेस नीटली पैक करता है। सो हेयर वी हैव यूज्ड मोर। सो वी कैन मेक कॉम्परेटिव डिग्री बाई एडिंग ई आर टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके अलावा बेस फॉर्म ऑफ एडवर्ब, और इसके साथ ही हम मोर लगाकर भी बना सकते हैं। Next, the superlative degree of the adverb can be formed by adding est to the base form of the adverb. It can also be formed by adding most before the adverb. इसके साथ ही अगर हमें superlative degree बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, जो base form है adverb की उसके साथ est लगा सकते हैं। like hard है तो hardest हो जाएगा, और we can use most also, like अगर hardly है तो most hardly. Example is written, if you thought Manish played badly in the cricket tournament, you should have seen Parminder who played the worst. अगर तुम सोचते हो कि मनीष ने badly बुरी तरह क्रिकेट टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है तो तुमको किसको देखना चाहिए, परमिंदर को, who played the worst. So badly का worst हो गया। Of all the princes
यंग इमाद रूल्ड द मोस्ट एबली, जितनी भी प्रिंसेस हैं उन सभी में यंग इमाद जो थी उसने बहुत अच्छे तरीके से रूल किया यानी शासन किया. सो इट इज़ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन of adverbs, that is positive degree, comparative degree and superlative degree. Let's see the next topic. Adverbs often confused. अब कुछ adverbs ऐसे होते हैं they are confusing. Certain adverbs may look similar but have different meanings. कुछ adverbs ऐसे होते हैं जो एक जैसे लग सकते हैं but they have different meanings. Like first is most and mostly. सो मोस्ट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. मोस्ट आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये एक्शन की गंभीरता बताता है. एंड मोस्टली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, और मोस्टली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह यूज होता है. लाइक इन द एग्जाम्पल यू कैन सी शी वॉज मोस्ट एकोमोडेटिंग. एकोमोडेटिंग मीन्स जो समायोजन कर लेता है, वो बहुत जल्दी समायोजित हो जाती है. शी वॉज मोस्टली एकोमोडेटिंग. ओके. सेकेंड इज सो सच एंड सचा. सो इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव. सो का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, टू डिस्क्राइब द डिग्री और इट्स इंटेंसिटी. जब हमें डिग्री बताना होती है, इंटेंसिटी बताना होती है किसी वर्ब की और एडजेक्टिव की, तब हम क्या करते हैं, सो का यूज करते हैं. इन द एग्जाम्पल यू कैन सी द पीस ऑफ म्यूजिक इज सो ड्रामेटिक. सो यहाँ पर सो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव क्या है, पीस ऑफ म्यूजिक, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है. सेकेंड, ही रैन सो फास्ट दैट ही स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द पेवमेंट. सो ही रैन सो फास्ट दैट ही स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द पेवमेंट. वो इतना तेज़ भागा कि वो ठोकर खाकर स्टेडियम में गिर गया. सो यहाँ पर मॉडिफाई किसको कर रहा है, एडवर्ब को. ही रैन सो फास्ट, बहुत तेज भागा, भागने की इंटेंसिटी बता रहा है. नेक्स्ट, सच इज यूज्ड विद अ नाउन फ्रेज टू डिस्क्राइब इट्स डिग्री ऑफ इंटेंसिटी. सच का यूज करते हैं हम नाउन फ्रेज के साथ इसकी डिग्री ऑफ इंटेंसिटी बताने के लिए. यू आर लकी टू हैव सच सपोर्टिव पेरेंट्स. तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स हैं. सपोर्टिव पेरेंट्स यहाँ पर आपका नाउन फ्रेज है. ओके. सच इज यूज, सच आ, यहाँ पर हमने सच बताया. सच आ इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन टू डिस्क्राइब समथिंग ऑफ अ ग्रेट डिग्री. अगर किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री है, बहुत मात्रा ज़्यादा है, गंभीरता ज़्यादा है, तब हम सच आ का यूज़ करते हैं नाउन के साथ. रिमझिम इज सच अ डेडिकेटेड स्टूडेंट. बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है. नेक्स्ट आता है हमारा गो एंड वेल. सॉरी, गुड एंड वेल. गुड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, वेल इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. गुड का यूज हम करते हैं एडजेक्टिव की तरह और वेल का यूज करते हैं हम एडवर्ब्स की तरह. एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो एनी रेस्टोरेंट नियर बाई विच सर्व्स गुड चाइनीज फूड. क्या तुम ऐसा कोई भी पास का रेस्टोरेंट जानते हो जो अच्छा चाइनीज फूड सर्व करता है. सो गुड यहाँ पर क्या है आपका, एडजेक्टिव. चाइनीज फूड कैसा, अच्छा चाइनीज फूड. फॉर समवन विद नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन म्यूजिक, पलक सिंग्स वेल. सो फॉर समवन विद नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन म्यूजिक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी फॉर्मल आधिकारिक ट्रेनिंग ना मिली हो म्यूजिक की, पलक सिंग्स वेल. पलक अच्छा गाती है. सो यहाँ वेल जो है वो आपका एडवर्ब की तरह यूज किया गया है. सिंग्स को मॉडिफाई कर रहा है, कैसा गाती है, अच्छा गाती है. सो गुड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड वेल इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. नेक्स्ट आता है हार्ड एंड हार्डली. सो हार्ड आपका एडजेक्टिव होता है एंड हार्डली इज एडवर्ब. व्हेन यूज्ड एन एडवर्ब as an adverb, hard means a great deal while hardly means very little. So अगर हम hard को adverb की तरह यूज़ कर रहे हैं, it means great deal. मतलब hard जो hardly जो है वो थोड़ा कम होगा और hard की intensity उससे ज़्यादा होगी. So example is the shells of this nut are very hard. यहाँ पर adjective की तरह यूज़ हुआ है कि जो shells हैं nut के वो बहुत ज़्यादा hard हैं. इट इज़ रेनिंग हार्ड, यहाँ पर एडवर्ब है कि बहुत ज़्यादा हार्ड रेनिंग हो रही है. यू हैव हार्डली ईटन एनीथिंग, तुमने कमी से कुछ खाया है. नेक्स्ट आता है बैड एंड बैडली. सो बैड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, बैडली इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. बैड का यूज़ हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं और बैडली का यूज़ हम एडवर्ब की तरह करते हैं. एग्जाम्पल इज द बिग बैड वॉल्फ चेज्ड रेड राइडिंग हुड अराउंड द हाउस. रेड राइडिंग हुड जो है वो आपका एक फेरी टेल है. एक बड़े से मीन्स बड़े और बैड बुरे भेड़िए ने रेड राइडिंग हुड का उसके घर तक पीछा किया. डिस्पाइट प्लेइंग वेल, अच्छा खेलने के बावजूद, वी लॉस्ट द मैच बैडली, हम मैच को बुरी तरह हार गए. नेक्स्ट आता है क्वाइट. क्वाइट, द एडवर्ब क्वाइट कैन हैव टू मीनिंग्स. इसके दो मीनिंग हो सकते हैं सेंटेंस में. इट कैन मीन वेरी और इट कैन मीन सफिशिएंट.
इसका मीन वेरी भी हो सकता है और सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त भी हो सकता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज क्वाइट केपेबल ऑफ हैंडलिंग द टास्क। वो यहाँ पर सफिशिएंट मीनिंग है कि वो सफिशिएंट केपेबल है कि वो इस टास्क को हैंडल कर पाए। सेकेंड सेंटेंस इज दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्वाइट यहाँ पर वेरी की तरह यूज किया गया है, सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज टू एंड इनफ। TOO इंडिकेट्स एन एक्सेस ऑफ समथिंग, जब कोई बहुत ज़्यादा हो, एक्सेस हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो। मोर देन वॉट इज़ कंसीडर्ड प्रॉपर मीन्स जो आपको ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा जब हो तब टू का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस इन अ सेंटेंस। अक्सर इसका इस्तेमाल एक नेगेटिव सेंस में किया जाता है। सेंटेंसेज द चाइल्ड इज़ टू यंग टू एंजॉय अ क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट। जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है कि वो क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट आता है इनफ। Enough indicates that something is exactly as much as or as many as necessary. Enough का मीन्स होता है कि पर्याप्त मात्रा, मीन्स जितना ज़रूरत है उतना ही मौजूद है। It is placed after an adjective, और enough जो है वो आपका एडजेक्टिव के बाद प्लेस किया जाता है और एडवर्ब के बाद भी प्लेस किया जाता है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले आता है। ओके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले आता है। एग्जाम्पल इज यू आर ओल्ड इनफ टू ट्रेवल बाई योर सेल्फ नाउ। तुम अब इतने बड़े हो कि तुम इतने बड़े हो मतलब पर्याप्त हो कि तुम अब अपने आप ट्रेवल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टू एंड इनफ कैन बी यूज टू रिप्लेस सो इन अ सेंटेंस। टू और इनफ को सो के साथ रिप्लेस किया जा सकता है सेंटेंस में। ही ड्रोव सो फास्ट दैट ही कुड टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वो इतना तेज उसने ड्राइव किया कि वो पेशेंट को बहुत कम समय में हॉस्पिटल ले जा सकता है। ही ड्रोव फास्ट इनफ टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम मीन्स वो इतना ड्राइव करने में पर्याप्त सक्षम है कि वो बहुत ही कम समय में पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जा सकता है। ही वॉज सो हैप्पी दैट ही कुड नॉट स्पीक। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो बोल नहीं पाई। एंड ही वॉज टू हैप्पी टू स्पीक। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो बोल नहीं पाई। सो हम हैप्पी और टू को सो एंड टू को रिप्लेस कर सकते हैं, सो एंड इनफ को भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो दीज वर द रूल्स related to adverbs. I hope these all rules are clear to everyone. All kinds of adverbs are clear to everyone. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.